Hello students, today we are going to discuss chapter number 8, how do organisms reproduce. First of all, the definition of reproduction. So reproduction is the process by which living organisms produce new individuals of the same species. Yes, the process by which living organisms produces new individuals of the same species. Now see, animals can produce the individuals of the same species only. Any animal cannot produce the individual of some other species. For example, dogs cannot produce cat. Similarly, cats cannot produce dog. Reproduction is necessary for the survival and increase in the population of a species. Now, what is the importance of reproduction, or why reproduction is necessary? So reproduction is necessary for the survival and increase in the population of a species. Okay, the new generation will stay, the old generation will slowly die, and thus the species will survive. If organisms do not reproduce, their population decreases and species will become extinct. Now consider, if there is no reproduction, the slowly population of that particular species will decrease and that species will become extinct. Means not a single animal of that particular species will be there on this planet. Okay, so for the survival purpose, reproduction is very much important. Now the question is, do organisms create carbon copies of themselves? Okay, there is this question. Do organisms create exact carbon copy of themselves? Then the DNA, that is the deoxyribonucleic acid molecules in the chromosomes in the nucleus, is responsible for the transfer of characters from the parents to the offspring. Now, how does the characteristics of the parents gets transferred into their children? Then that particular information is stored in DNA molecule, that is the deoxyribonucleic acid. Okay, whatever information or whatever characteristic traits are there of the parent, most of the traits are transferred into their offsprings. Offsprings means the children. During reproduction, the reproductive cells produce two copies of the DNA which separate into two cells. अब reproduction के दौरान, okay, reproductive cell produces two copies of the DNA which separate into two cells. The DNA copies will be similar but not identical to each other, and whatever these DNA copies are there, it will be similar but not identical. Okay, identical means exact equal, but these copies are not exact equal. They will appear to be similar to one another. So the new individuals have slight variation from their parent, and obviously you also know that the children does not exactly look like their parent. Okay, there are slight variations which children possesses apart from their parent, and this is the basis for variation and evolution of new species. And this is the basis of variation, that the offsprings are not 100% copy of their parent, because 100% exact copy of DNA is not possible. Similar copy of DNA is there, not identical, and that's why children are somewhat different from their parent, and that is the basis of evolution of new species. Now the importance of variation, why variation is very much important. So DNA copying during reproduction is important for maintaining the body design of different organisms to survive in existing environment. Now see, DNA copying during reproduction is very important for the maintenance of body design of different organism. Remember, now see, DNA knows that I am the DNA of which particular animal, and this particular animal has certain kind of body design only. Okay, for example, cats children grow up to become a cat. वो चाहे जितना भी ज्यादा खाना खा ले, ठीक है, कैट की साइज कभी भी एक राइनो जितनी बड़ी नहीं हो सकती. Similarly, the DNA of the elephant's baby cell know that we are elephant. तो वो चाहे जितना भी कम खाए, वो खुद की साइज एक चूहे जितनी छोटी नहीं कर सकते. Okay, DNA remembers the body design, but the environment is constantly changing due to changes in temperature, climate, water levels, etc. But external environmental changes, for example टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, वाटर लेवल्स है, ये सब बदल रहा है धीरे धीरे. And if organisms cannot adjust themselves to the changes in the environment, then the species will become extinct.
ओके, तो ये बदलते हुए एटमॉस्फेयर के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर वो हिसाब से चेंजेस नहीं ला पाता, then ultimately the species will be in danger. So that's why an organism must always change itself as per the external environment. If there are variation in some individuals of a species, they may be able to survive the changes in the environment. Okay, अगर variation है individual species के अंदर, then maybe they will be able to survive the changes. But अगर variation ही नहीं है, then that is fixed कि वो changes को सहन नहीं कर पाएंगे, and ultimately the species will become extinct. But if there are variations into their DNA structure, then there are possibilities कि वो changes को survive कर पाएंगे. So variation in species is necessary for the survival of different species and for the evolution of new species. And that's why variation in species is very much necessary for the survival of different species and for the evolution of new species. Now there are different types of reproduction. There are two main types of reproduction, that are asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction is the reproduction in which new individuals are produced from a single parent. See, asexual reproduction does not need two parents. Asexual reproduction के अंदर only a single parent is required. Whereas sexual reproduction is the reproduction in which two individuals are involved to produce a new individual. जहां तक बात है sexual reproduction की, two individuals are involved for the production of a new individual. Okay, first of all we are going to discuss asexual reproduction, and there are different types of asexual reproduction. They are fission, budding, regeneration, fragmentation, spore formation, vegetative propagation, etc. One by one we are going to see all the types. First of all, fission. Fission is an asexual reproduction by which a unicellular organism divides and forms two or more new individuals. फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात है, possessing only a single cell, they divide and form two or more new individual. ठीक है, वो या तो एक सेल डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट होगा, या फिर दो से ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट होगा, एंड दैट इंडिपेंडेंट सेल्स आर न्यू इंडिविजुअल. और फिजन में भी दो टाइप होती है, दे आर बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. Binary fission, in this method an organism divides and forms two individual. अगर कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो इंडिविजुअल में कन्वर्ट करता है, टू मींस बाई, that's why it is known as binary fission. First, the nucleus divides and forms two nuclei, as you can see in the diagram. One single organism is there. Slowly, as you can see, the nucleus is dividing. Here, one nuclei is divided into two. Now, slowly, the cell body is also started to divide. Here, almost it is separated, and now you can see in step number 6, from one organism or one mother cell, this cell is converted into two daughter cell or two different individual. So initially, nucleus divides and form two nuclei, as you can see in the case 3. And then the cytoplasm divides and form two daughter cells, as in the case 6. Cytoplasm also divide and forms two daughter cells. Example of organism undergoing binary fission, that is amoeba, paramecium, etc. Then we have multiple fission. In this method, one organism divides into many daughter cells. Okay, multiple fission के अंदर एक ही single organism होता है, but it divides itself into many daughter cells. Okay, as you can see a cell over here, it is divided into different types of cells, as you can see. Example is plasmodium, that is malarial parasite. Okay, ये malaria फैलाता है. You know it is a fever. Next is budding. This is also another mode of asexual reproduction. In this method, a bird-like projection is formed on the body of the organism. Okay, for example, देखो यहाँ diagram. In the very first, this is hydra. आप देख सकते हैं यहाँ पर bird-like है organism on the body of the main organism. कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो single celled organism है, उसके ऊपर यहाँ पर ऐसा bird जैसा structure है. ठीक है? The bird then develops into a new individual. Now slowly this bird is developing into new individual, as you can see over here in the second step. यहाँ पर, ठीक है?
देन इट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, फिर अपने पेरेंट से वो सेपरेट हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे, ओके 2 से 3, एज यू कैन सी यहाँ पर इट इज ट्राइंग टू सेपरेट, और देखो यहाँ पर अलग हो गया, एंड दिस इज द पेरेंट एंड दिस इज द ऑफस्प्रिंग, आप देख सकते हो यहाँ पर वो अलग हो गया, सेपरेट इंडिविजुअल की तरह, ठीक है। तो बडिंग हैपेंस इन हाइड्रा एंड यीस्ट। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। In this method, a part of the body, if the organism is cut or broken, can develop into a new individual। देखो रीजनरेशन में क्या होता है, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का हिस्सा कट हो गया या ब्रेक हो गया, तो वहां से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, इसको रीजनरेशन बोलता है। रीजनरेशन मीन्स टू रीजनरेट। आप यहाँ पर देखो, ओके दिस एग्जांपल इज देयर, यहाँ पर से इसको काट दिया जाएगा इस ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, तो 3 हिस्से हो गए, ये हिस्सा डेवलप होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर ये हिस्सा डेवलप होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, और ये हिस्सा डेवलप होकर पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। द सेम इज ट्रू फॉर हाइड्रा, के बीच में से काट दिया उसको, हाइड्रा विल ऑल्सो रीजनरेट इटसेल्फ, ठीक है, और ग्रो भी करेगा रीजनरेट होने के बाद। तो रीजनरेशन होता कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में है, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश एटसेट्रा। The next is fragmentation. In this method, the body of a simple multicellular organism breaks up into smaller species on maturation, and each fragment develops into 2 new individual। फ्रैगमेंटेशन के अंदर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके सिंपल मल्टी, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात है। दे ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर स्पीसीज ऑन मैच्योरेशन। मैच्योर होने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सी दिस इज वन ऑर्गेनिज्म, इट इज नाउ मैच्योर, तो यहाँ से वो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद दो सेपरेट हो गए, फिर दिस इंडिविजुअल विल ग्रो इनटू अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म, और ये वाला हिस्सा विल आल्सो ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। ईच फ्रैगमेंट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, that is fragmentation, and fragmentation occurs in Spirogyra। Then we have spore formation। In this method, structures called sporangia produce tiny cells called spores। स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है, देयर आर स्ट्रक्चर्स जिनको स्पोरेंजिया बोलते हैं, एंड दे प्रोड्यूस टाइनी सेल्स जिनको स्पोर्स बोलते हैं, ओके ये स्पोरेंजिया है, उसके ऊपर छोटे 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 दाने लाइक स्ट्रक्चर जैसे सीड होते हैं ना, वैसे इसको स्पोर्स बोलते हैं, इनको सीड नहीं बोलते, बट दीज आर सीड लाइक स्ट्रक्चर जो स्पोरेंजिया के ऊपर फॉर्म होते हैं। When the spores come in contact with a moist surface, it develops into new individual। और जब ये स्पोर्स मोइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब कि पानी के कांटेक्ट में आते हैं, दे डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। मतलब कि ये स्पोर्स सीड्स का रोल प्ले करते हैं, बट दिस स्पोर्स आर वेरी लिटिल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। एन एग्जांपल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम एटसेट्रा। Next is vegetative propagation। In this method, new plants are produced from the vegetative part of the plant like root, stem or leaf। Vegetative propagation में क्या होता है, new plants are produced from the vegetative part, मतलब कि roots में से हम पूरा plant उगा सकते हैं, stem में से पूरा plant उगा सकते हैं, leaf में से भी पूरा plant उग सकता है, ओके फॉर एग्जाम्पल कौन से प्लांट के रूट में से हम पूरा का पूरा प्लांट उगा सकते हैं, तो डालिया है, स्वीट पोटैटो है, ओके इसके रूट्स का इस्तेमाल करके हम वापस से पूरा प्लांट उगा सकते हैं। फिर कौन से प्लांट के स्टेम का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पोटैटो, जिंजर। और कौन से प्लांट के पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ब्रायोफाइलम, बेगोनिया। नीचे जो एग्जांपल है आप देख सकते हो, लीव्स में से देखो प्लांट उगा है, यहाँ पर भी देखो लीव्स में से पूरा का पूरा प्लांट उगा है। फिर यहाँ से लीव्स को काट कर ये जमीन के अंदर अगर हम डाल देंगे, देन दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एंटायर प्लांट। Plants produced by vegetative propagation produce flowers and fruits earlier than those produced from seeds। ये एक प्लस पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, कि अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हमने कोई प्लांट प्रोड्यूस किया है तो उसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी आ जाएंगे, ओके। और अगर सीड्स डालकर कोई प्लांट उगाया हुआ है, वही प्लांट बट सीड डालकर उगाया हुआ है, तो उसमें टाइम लगेगा। बट अगर उसी प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से उगाए तो बहुत ही जल्दी उसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाएंगे। It also helps in the propagation of plants which do not produce seeds like rose, jasmine, banana, etc। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से तो
हम वो प्लांट भी उगा सकते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जांपल रोज है, जैस्मिन है, बनाना है, उसके अंदर सीड्स नहीं होते, बट स्टिल वी कैन प्रोड्यूस दिस प्लांट। Vegetative propagation can also be done artificially by cutting, layering, grafting, etc. और कटिंग करके, लेयरिंग करके, ग्राफ्टिंग करके भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जा सकता है। Now sexual reproduction in flowering plant. First of all we will see sexual reproduction but in plant. Okay, reproductive parts of a flower. अब फ्लावर के reproductive part होते कौन कौन से हैं? So the stamen and pistil are the reproductive part of the flower. Which two parts? Stamen and pistil. ठीक है। Now यहां पर आपको ये एंथर दिख रहा है, ये फिलामेंट है। ठीक है, दिस वन, दिस इज द फिलामेंट, और ऊपर टॉप पर दिस इज द एंथर। ये दोनों मिलकर बनता है स्टेमेन। काफी सारे फ्लावर्स में आपने ये देखा भी होगा। ठीक है। एंड पिस्टिल इफ यू कंसीडर, तो ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये सेंटर में स्टाइल है और सबसे नीचे ओवरी है। तो ये पूरा का पूरा मिलकर बनता है पिस्टिल। ठीक है। तो पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। Stamen is male reproductive part. It produces pollen grain in anther. Okay, anther के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? pollen grain, which contains the male germ cell या फिर male gamete. और ये pollen grain के अंदर क्या होता है? male germ cell या फिर male gamete. male gamete मतलब कि male reproductive cell. gamete का मतलब ही reproductive cell होता है। ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना। And pistil is the female reproductive part and it produces ovules in the ovary which contain female germ cell, means female gamete. Okay, pistil क्या प्रोड्यूस करता है? ओव्यूल्स इन ओवरी, और ये ओव्यूल्स के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट। ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। नाउ pollination is very much important for sexual reproduction in a plant. Without pollination, sexual reproduction in a plant is not possible. अब pollination का मतलब क्या होता है? So the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower is called pollination. Okay, transfer of pollen grains from anther to stigma. anther के ऊपर से जब pollen grains स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये एंथर है, यहां पर जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, तो ये प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस बाय विंड। अब पोलिनेशन कौन कौन सी चीजों से हो सकता है? तो विंड से, वाटर से, या फिर इंसेक्ट से। If the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower, it is self-pollination. Okay? अब काफी सारे फ्लावर्स में ऐसा होता है कि भाई एक ही फ्लावर के अंदर पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है, मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो एक ही फ्लावर में अगर ये प्रोसेस हो जाए, मतलब कि एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन चला गया, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों की दोनों प्रोसेस हो गई। दैट्स वाई। ओके, and if it is transferred from anther of one flower to the stigma of another flower, it is called cross pollination. But अगर ऐसा नहीं होता, काफी सारे फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि कुछ फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कुछ फ्लावर्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, तो एक फ्लावर में से किसी दूसरे फ्लावर में, मतलब कि एक फ्लावर के एंथर में से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर पॉलिनेशन होता है, मतलब कि पोलन ग्रेन्स जाते हैं, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द टू। सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसी फ्लावर के अंदर और क्रॉस पॉलिनेशन होता है दो अलग अलग फ्लावर के अंदर। ओके, और पॉलिनेशन कौन से कारणों से हो सकता है? तो इंसेक्ट के कारण, विंड के कारण या वाटर के कारण, दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया सेल्फ पॉलिनेशन। ये एंथर है, एंथर के ऊपर से ही पोलन ग्रेन उड़कर यहाँ पर चला गया स्टिग्मा के ऊपर, सेल्फ पॉलिनेशन। बट दिस इज फ्लावर वन। यहाँ पर कोई बटरफ्लाई बैठी, उसके पैरों के ऊपर पोलन ग्रेन चिपक गया, फिर वो उड़कर यहाँ पर आएगा, ये स्टिग्मा के ऊपर बैठेगी जब बटरफ्लाई, तब पोलन ग्रेन वहां पर चिपक जाएगा,
ये फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ पर जब चिपकेगा तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ फर्टिलाइजेशन. एज यू कैन सी स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पर पोलन ग्रेन्स है. ठीक है. After the pollen grain is transferred to the stigma, it produces a pollen tube which passes through the style and enters the ovary and ovule. जैसे ही pollen grain stigma के ऊपर चिपक जाते हैं, it produces pollen tube as you can see. ये pollen tube है, which produces a pollen tube which passes through the style and enters the ovary. ये style में pass करते 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 यहाँ पर ovary के अंदर enter हो जाती है ये tube. Okay, as well as ovule. In the ovule, the male germ cell fuses with the female germ cell. Germ cell मतलब कि गैमेट. ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ये मेल जर्म सेल का जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा है वो ट्यूब के थ्रू मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब कि एक हो जाते हैं. और जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल फ्यूज होते हैं, इट फॉर्म्स अ जाइगोट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. Whenever a male germ cell and female germ cell fuses with one another, okay, it forms a zygote और ये प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. And after the fertilization, zygote divides several times and forms the embryo. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है इट डिवाइड सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो. कई बार ये डिवाइड होता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है विच देन डेवलप्स इनटू द सीड. और एम्ब्रियो जो है इट विल बी डेवलप्ड इनटू द सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट. ठीक है. ये जो एम्ब्रियो वाला जो पार्ट है इट विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये जो ओवरी वाला जो हिस्सा है इट विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू फ्रूट्स. ठीक. Now reproduction in human beings. First of all, male reproductive system. The male reproductive system consists of a pair of testes which produces the male reproductive cells called sperms and the hormone testosterone. Male reproductive system में क्या होता है? तो first of all there is a pair of testes. This testis produces reproductive cell, male reproductive cell जिनको हम sperms बोलते हैं. और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ये टेस्टोस्टेरोन. इट इज कंटेन्ड इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम. ठीक है. टेस्टिस आर प्रेजेंट इन सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको स्क्रोटम बोलते हैं. सी दिस आर अवर टेस्टिस पार्ट और ये पूरे के पूरे हिस्से को स्क्रोटम बोलते हैं. ठीक है. फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ ट्यूब कॉल्ड वास डेफरेंस. और हर एक टेस्टिस में से एक ट्यूब निकलती है जिसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं. एज यू कैन सी ये वाली जो ट्यूब है, ओके, दैट इज द वास डेफरेंस. इट जॉइंस इनटू द यूरेथ्रा. ओके. और ये जो वास डेफरेंस है वो कहां पर ज्वाइन होता है? यूरेथ्रा में. ओके. यूरेथ्रा मींस दैट इज द आउटलेट थ्रू आवर पेनिस. ठीक है. एज यू कैन सी दिस वास डिफरेंस जॉइंस इनटू द यूरेथ्रा फ्रॉम ओवर हियर. द यूरेथ्रा इज एनक्लोज्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस. ये यूरेथ्रा जो है सेंट्रल, वो एक मस्कुलर ऑर्गन के सेंट्रल पार्ट में होता है. ये मस्कुलर ऑर्गन को हम पेनिस बोलते हैं. इट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड जेनिटल स्पोर. और पेनिस का जो ओपनिंग होता है दैट इज कॉल्ड जेनिटल स्पोर. दिस वन जहां से हम यूरिन को या फिर स्पर्म को रिलीज कर सकते हैं. द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस फ्लूइड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म. और जो सेमिनल वेसिकल होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये एक टाइप का फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं. ये फ्लूइड का काम क्या है? तो दिस फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म and it also help in the movement of the sperm. ठीक है. स्पर्म अपने आप ही न्यूट्रिशन नहीं ले सकता, ना अपने आप मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए एक फ्लूइड चाहिए which provide nutrition and movement to the sperm. तो ये फ्लूइड कौन प्रोड्यूस करता है? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है. and here there is a diagram of a sperm. okay, this is the tail part and this is the head part which contains the nucleus. This tail part helps the sperm in movement. Now, female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries which produces the female reproductive cells called ova or eggs and the hormone estrogen. Okay, see these are the ovaries, these two parts. There are two ovaries which produces the egg cells or ova. These are female reproductive cell and they also produces the hormone estrogen. Above the ovaries are tubes called oviduct or fallopian tube. और ovaries के ऊपर tubes होती है ये वाली.
ऑन बोथ द साइड, जिनको ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। The two oviduct unite into a bag-like structure called uterus, और ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर और यहाँ पर मिलती है, so this bag-like structure that is called uterus, and the uterus has opening called vagina. Okay, और uterus जो है, okay, it has an opening that is called vagina. Okay, this particular section is called vagina, and this is human ovum or human egg cell. नाउ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी, जैसे फ्लावर के केस में पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के थ्रू फर्टिलाइजेशन हुआ था, उसी तरह जानवरों के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, एज वेल एज द सेम थिंग टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंटर्स इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एट दैट टाइम स्पर्म फ्रॉम द मेल बॉडी एंटर्स इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी। द स्पर्म रीचेस द ओविडक्ट। ओके, स्पर्म जो है वो ओविडक्ट तक पहुंचता है, मतलब कि ये वाले हिस्से तक। एंड वन स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे स्पर्म आए, इट हैज रीच्ड द एग सेल, बट अंदर खाली एक ही सेल जा सकता है। एंड एज सुन एज वन स्पर्म एंटर्स और फ्यूजेस विद द एग सेल, फिर जो आउटर लेयर होता है एग सेल का वो एकदम स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है, ताकि जो दूसरे स्पर्म सेल्स है वो उसके अंदर एंटर ना कर सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फ्यूजन हो चुका है। नाउ इट विल स्टार्ट डेवलपिंग अ जाइगोट। ठीक है, वन स्पर्म फ्यूजेस विथ एन एग एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, फिर यहाँ पर ये स्पर्म के कारण इट बिकेम एन फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइजेशन हो चुका है। द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, और फिर ये जाइगोट है ये यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होता है, बट यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होने में टाइम लगता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। आप यहाँ बताइए, अभी फर्टिलाइजेशन हुआ है, फिर धीरे 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 ये यूटेरस के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। टू सेल डिवाइड होकर दो बना, फिर 4 बने, फिर 8 बने, उसी तरह 16, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर देखो ये यूट्रस के ऊपर ये इम्प्लांट हो चुका है जाइगोट। ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस। द जाइगोट देन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, फिर जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनना चालू होता है। ओके, एंड दिस एम्ब्रियो विल slowly gets converted into a baby. The embryo gets nutrition from the mother's blood through the placenta. ओके, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो मदर के ब्लड में से, थ्रू प्लेसेंटा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स 9 months एंड देन द चाइल्ड इज बोर्न, और एक ह्यूमन चाइल्ड को डेवलप होने में 9 महीने लगते हैं, एंड 9 months के बाद अ चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, एज यू कैन सी दिस बेबी ओवर हियर, और ये जो पर्टिकुलर है ना दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड है सॉरी ये, और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है दैट इज प्लेसेंटा। यहाँ पर मदर्स की काफ़ी ब्लड वेन्स या ब्लड कैपिलरीज आती है, जिसके थ्रू ये बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, नाउ मेंस्ट्रुएशन। द ओवरी प्रोड्यूसेस 1 egg every month एंड द यूट्रस प्रिपेयर्स टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। हर महीने ओवरी जो होती है वो 1 egg प्रोड्यूस करती है। ओके, और जो यूटेरस है इट प्रिपेयर्स टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, और जैसे ओवरी एग प्रोड्यूस करना चालू करती है तो हर महीने यूट्रस भी खुद को तैयार कर लेता है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। मतलब कि यूट्रस को राह होती है कि अभी फर्टिलाइज्ड एग आएगा जो यूट्रस की वॉल के ऊपर सेटल हो जाएगा। इट्स वॉल बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी विथ ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। कि जो वॉल होती है वो थिक और स्पॉन्जी हो जाती है विथ ब्लड वेसल्स फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। और थिक और स्पॉन्जी क्यों हो जाती है, क्योंकि ढेर सारे ब्लड वेसल्स वहां पर आ गई, ढेर सारे ब्लड का फ्लो वहां पर चालू हो जाता है, सो दैट एम्ब्रियो जब आए देन दैट कैन बी नरिश्ड। If fertilization does not take place, then the uterus wall breaks and comes out of the vagina as blood and mucus. बट अगर मान लो कि भाई एग सेल का फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो यूट्रस की जो वॉल है इट विल ब्रेक डाउन एंड कम्स आउट ऑफ द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, और वजाइना में से ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में एक लिक्विड बाहर निकलेगा। ठीक है, एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ एंड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ओके, and after the puberty period this cycle takes place every month inside a female body, और इसी को menstruation बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हर महीने ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस करते हैं,
and uterus walls prepare itself for receiving an embryo या fertilized egg को रिसीव करने के लिए, ताकि वो उसको न्यूट्रिशन दे सके। अब न्यूट्रिशन कैसे देंगे? तो उसकी वॉल्स के आजू बाजू में ढेर सारी ब्लड वेसल्स आ जाती है जिसके थ्रू काफी ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वहां पर जो एक्स्ट्रा ब्लड और वो सब था, तो ब्लड और म्यूकस के साथ एक लिक्विड बाहर निकलेगा, ठीक है, आउट ऑफ द फीमेल वजाइना, एंड दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ एंड इट इज कॉल्ड menstruation. Now, reproductive health. Sexually transmitted disease are diseases transmitted through sexual contact. ठीक है, sexually transmitted diseases जो होते हैं, they are the disease which are transmitted through sexual contact, and they may be bacterial infection like gonorrhea and syphilis. वो कौन सी बीमारी हो सकती है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल गोनोरिया है या सिफिलिस है, या फिर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं लाइक वॉर्ड्स एंड HIV एड्स, ठीक है। Prevention of pregnancy or contraception. Now, how can human beings prevent pregnancy? So pregnancy can be prevented by three main methods. They are barrier method, chemical method and surgical methods. ये तीन main method है by which pregnancy can be prevented in a human body. First of all, barrier method. It consists of using condoms, diaphragm, cervical caps, copper T, etc. ठीक है, these are barrier methods. जिसमें condoms है, diaphragm, cervical caps है, copper T है, etc. Then we have chemical methods. Chemical methods consist of taking drugs like oral pills, vaginal pills, etc. ठीक है, chemical methods में कौन कौन से method हो सकती है? तो it consists of taking drugs like oral pills है, vaginal pills है, etc. ओके, गोलियां खाकर, दवाई लेकर, ठीक है, प्रेगनेंसी को टाला जा सकता है। एंड फाइनली वी हैव सर्जिकल मेथड्स, मतलब कि सर्जरी कराकर। इट कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग और टाइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन मेल्स। मेल्स के अंदर वास्ट डिफरेंस का पार्ट वो टाई अप कर देते हैं ताकि स्पर्म का सेक्रेशन ना हो, या फिर फीमेल के अंदर वो फेलोपियन ट्यूब को टाई अप कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं ताकि एग सेल फिर यूट्रस वॉल पर कभी आ ही ना सके, ठीक है, या फिर स्पर्म सेल एग सेल तक ना पहुंच सके, ठीक है। तो मेल के अंदर जो ये प्रोसीजर होती है सर्जिकल मेथड, उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल्स के अंदर जो ये सर्जरी होती है उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन।